Hello and welcome. I am Arun Kumar from Beautiful Mind IS, and this is my psychology optional open class. Why open class? So that those students who are planning to take psychology optional could see this lesson and could take informed decision. Moreover, if they are willing to join some coaching institute like my institute, then they could also see what is my style of teaching. So this is to just promote our coaching. So that is why in the beginning a few class will be open, so that all of you are who are interested would watch. ओके, जो भी इंटरेस्टेड है वो अपना देख सके और अपना एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सके. ठीक है, चलते हैं आगे. तो इसको सीरीज में ऐसे चलाते रहेंगे. दिस इज यूनिट 1 एंड टॉपिक इज डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी. तो आज मैं इसी टॉपिक को डिस्कस करूँगा. क्वेश्चन इज दैट हाउ साइकोलॉजी इज डिफाइंड. साइकोलॉजी, everybody knows from very common knowledge that it is made up of psyche and logy. So psyche word was originally from Greek mythology. In Greek mythology, psyche was represented by a butterfly, and she married Eros, the god of love. So from that point it has originated. लेकिन अभी हम बात करेंगे, अभी बहुत फेज़ आए हैं इसमें कि साइकोलॉजी कभी स्टडी ऑफ सोल हो गया, कभी स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस हो गया, कभी स्टडी ऑफ माइंड हुआ. लेकिन अभी हम कैसे इसको स्टडी करते हैं, इसे डिफाइन करते हैं, उस पर फोकस करेंगे. अगले लेक्चर में हिस्ट्री पे जाएंगे. सो स्टडी ऑफ व्हाट इज साइकोलॉजी ऑल अबाउट. मतलब स्टडी ऑफ बिहेवियर. नाउ यू विल कम टू नो there is an adjective scientific study of behavior. तो हम उसको explain करेंगे why it is scientific. But first of all, focus upon behavior. What do you mean by behavior? Behavior is anything that we do and that is observable and measurable. तो हमारे जितने भी एक्शन हैं वो उसके बारे में स्टडी करते हैं. और इसमें साथ में बता दूं कि बिहेवियर भी मेंटल प्रोसेसेस भी, ये क्यों होगा वो मैं डिस्कस करूँगा. Of animal as well as human. We will have reason also why we study that. Now question C, focus on that. That behavior. Behavior is made up of what? Basically, if you analyze any behavior, any sort of behavior, like I am teaching, you are driving, you are talking to someone, you are crying, you are laughing, whatever you can imagine, you see, it will be reducible to at least two things. What? That there will be some stimulus and a response. Any behavior. For example, you are listening this lecture, watching this lecture. So what is stimulus? Stimulation is anything that stimulate your sense organs. Like I am talking about behavior, and you are listening, you are paying attention to this thing. So it is your sensory organ being stimulated. So stimulus is anything, physical energy you can say. So stimulus, and second thing, now you are listening, you are responding, means by paying attention to it. So this is your response. Getting? So stimulus and response. Suppose somebody is calling you. Suppose your name is David, for example, David. Now you are responding. See, it is a your ear is being stimulated, your name, and then you are responding. So stimulus and response. So एनालिटिकली स्पीकिंग, स्ट्रक्चर वाइज अगर आप देखें तो किसी बिहेवियर को कम से कम दो चीज़ों में तोड़ सकते हैं आप, उसमें होता है. एनीवे, ये तो हुआ एक एलिमेंट्री चीज़ है. लेकिन बिहेवियर का मतलब दैट ह्यूमन बीइंग और एनिमल इंक्लूडिंग डू अ लॉट ऑफ थिंग, है ना. वो बहुत सारी चीज़ें करते हैं. तो डे इन डे आउट देख लो आप, हर समय हम कुछ ना कुछ करते हैं. एंड दिस इज़ द रीज़न दैट एक हमारा जीवित होने का हॉलमार्क है कि वी आर एक्टिव, बिहेवियरली एक्टिव, मेंटली एक्टिव, है ना.
तो वो भी देखो है, तो हम मतलब जीना है तो क्या करते हैं आप, सुबह से देखिए सूट के क्या करते, कुछ ना कुछ बिहेवियर ही तो करते। सो वी स्टडी द, लेकिन अगर आप पूछेंगे कि ये कोई बात हुई हर तरह का बिहेवियर स्टडी किए जा रहे हैं, नो, वी स्टडी बिहेवियर इन सम कंटेक्स्ट। वो तो जाहिर सी बात है। बोले कैसे? सपोज कि आपने नाम सुना होगा अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ये क्या हुआ? किसी क्लासरूम में जब आप देखते हैं कि एक बच्चा सीट ठीक से नहीं बैठा, ही इज़ नॉट स्टडिंग वेल, ही इज़ नॉट पेइंग अटेंशन टू दैट, देन इट बिकम इम्पॉर्टेंट टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ दैट चाइल्ड। ऐसे क्यों स्टडी करते रहेंगे? अब ये कोई बात है कि आप चलते जा रहे हैं सबकी स्टडी कर रहे हैं? स्टडी मीन्स इट शुड बी पर्पसिव। तो उसी ध्यान से आपको समझना चाहिए कि विथ इन सम कंटेक्स्ट विथ सम पर्पस, है ना। वो हम तो उसको आप देखेंगे अटेंशन डेफिसिट की, इसका एक जगह किसी चीज़ पर ध्यान नहीं लग रहा। सपोज आई एम टीचिंग एंड यू आर नॉट एबल टू कंसंट्रेट, फोकस ऑन मी, व्हाट आई एम टेलिंग, व्हाट आई एम ट्राइंग टू इंटरप्रेट, you are not focusing on that. Attention deficit and hyperactive behaviorally, that such individual, or even children, or it could be anyone, will be hyperactive, means will keep doing something behaviorally very active. जैसे आप क्लास में बैठेंगे तो शांत रहेंगे, तभी तो एक अटेंशन हो गया, दैट इज अ मेंटल थिंग। एंड बिहेवियरली यू आर हाइपर मतलब you are doing something, one thing, then another thing, then another thing, like that. So such children should be studied. तो वही बिहेवियर हुआ। तो बिहेवियर इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, है ना। एंड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड बिहेवियर you will need to understand sometime mental processes also, and sometime your interest will be solely in mental processes. जैसे आप एटीट्यूड देख लो, क्या आपको लगता है कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर कैसे, हमारे देश का अपोजिशन कैसा है? सपोज यू फोकस ऑन दिस, देन व्हाट वुड हैपन? आई एम इंटरेस्टेड इन योर ओपिनियन, आई एम इंटरेस्टेड इन योर एटीट्यूड, सी दिस थिंग, आई एम इंटरेस्टेड इन हाउ यू आर थिंकिंग, हाउ यू आर इवैल्यूएटिंग। एटीट्यूड्स आर इवैल्यूएशन ऑफ द सोशल वर्ल्ड। किसी चीज़ के बारे में जो इवैल्यूएशन करते हैं उसी को एटीट्यूड कहते हैं। जैसे ये मार्कर कैसा है, इसको आप कहेंगे नॉट गुड, तो आप कह सकते हैं। सो दिस इज एटीट्यूड, निगेटिव एटीट्यूड कहेंगे इसको। तो आवर इंटरेस्ट इज इन मेंटल प्रोसेसेस ऑल्सो। तो साइकोलॉजी में हम इसको भी लेते हैं, किसको? बिहेवियर, है ना, इधर तो दिख रहा होगा, एंड प्लस मेंटल प्रोसेसेस। एंड मेंटल प्रोसेस का मतलब होता है, आप कह सकते हैं कि दैट what goes in between S and R. अगर आप एनालिटिकली somebody is calling you, David, before you respond, you process that information. Who is calling? Whether he is a boy, girl, what? Is shouting or something. कितनी तेज में बुला रहा है. So you process. That is why we have written this. This is the paradigm that actually before responding we think. In most cases we do this thing, except in some reflexes. जैसे आप कोई गर्म चीज़ को टच करें, then you will immediately pull your hand reflexively, बिना सोचे समझे, तो वो होता है उसमें। अदरवाइज ज़्यादातर बिहेवियर में हम इसी तरीके से पहले स्टिमुलेट होती है चीज़ें, एंड देन यू थिंक ओवर इट, एंड देन रिस्पॉन्ड करते हैं, है ना, रिएक्ट करते, रिस्पॉन्ड करते, जो भी। सो our interest is not only in S and R, but our interest is in O also, means what goes inside. जैसे आप एक क्यू में खड़े हो, कोई आता है आपके पैर पर चढ़ जाता, अब आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे? बहुत दर्द हुआ तो आप इमीडिएटली तो करोगे ही कुछ, लेकिन किस तरीके से करोगे, कितने एक्सटेंड में गुस्सा करोगे, डिपेंड करता है कि वो जानबूझ के किया, वेदर ही हैज़ डन विद पर्पस और एक्सीडेंटली, गेटिंग। सो दिस इज द थिंग्स। सो O इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। So our interest is not only in objective form, means what is observable and measurable. Behavior is any action or reaction, listen carefully, that is observable and measurable. ये हमारे मटेरियल में भी लिखा हुआ है, तो आपको लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, समझ लो। बिहेवियर को लिखेंगे any action or reaction that is observable and measurable is behavior. And mental processes क्या होता है, इसको थोड़ा समझ ले। मेंटल प्रोसेसेस को तो मैंने कह दिया कि S और R के बीच में जो जाता है उसको मेंटल प्रोसेस कहते हैं।
आप भी कहोगे क्या फ़नी एग्जांपल दिया आपने कि अगर कोई कहे कि तुम्हारा घर कहाँ है तो बोले राजेंद्र नगर में, और तुम्हारा घर कहाँ है बोला उसके घर के सामने। ये कोई एड्रेस हुआ या आइडेंटिटी हुई? नहीं हुआ ना। तो चलो मेंटल प्रोसेसेस को हम ऐसे समझते हैं कि दैट फॉर एग्जांपल जैसे कि आप थिंकिंग को ले लो, एक मेंटल प्रोसेस है ना। अब थिंकिंग एक जनरल वर्ड है, इट कुड बी डिसीजन मेकिंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग, ऑल दीज थिंग्स आर मेंटल प्रोसेस। पेइंग अटेंशन, मेंटल प्रोसेस, yes. Perceiving something, yes. Experiencing something, yes. Memorizing something, yes. And feeling something, well, yes. All these things are mental processes. So memory, evaluation, thinking, perception, everything is mental process. Mental process का मतलब what goes inside our mind. गेटिंग, जो हमारे दिमाग में चलता रहता है वो मेंटल प्रोसेस है। आपको मैं पूछता हूँ एटीट्यूड मेंटल प्रोसेस है क्या है? एटीट्यूड एक प्रोडक्ट भी है और प्रोसेस भी है, प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग, तो मेंटल प्रोसेस है। वैल्यूज हमारे आइडियल है लेकिन इवैल्यूएट भी तो करते हैं, तो मेंटल प्रोसेस। सो मेंटल प्रोसेसेस बहुत ही ब्रॉडर टर्म है ना। अगर आप उसको दो तरीके से इवैल्यूएट कर सकते हैं, मेंटल प्रोसेसेस दो तरीके के होंगे इसमें, है ना। एक होता है कॉग्निटिव एंड एक होता है नॉन कॉग्निटिव। कॉग्निटिव मीन्स प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग समथिंग। देखो आप ह्यूमन बीइंग की बिहेवियर की स्टडी करते हैं मेंटल प्रोसेस, तो किस तरह का, जैसे कि जानने और समझने में व्हेन यू ट्राई टू सपोज यू आर watching this lecture, you are listening this thing, you are trying to what, using your mental processes to understand what I am telling, and you are judging whether I am telling that thing clearly or not. So say these processes are what, knowing and understanding, processes involved in knowing and understanding. जैसे attention, yes, it is very important. Perception, yes. Retention, याद भी रहना चाहिए, yes. And थिंकिंग, एवरीथिंग इज कॉग्निटिव मेंटल प्रोसेस। तो इसको कहते हैं कॉग्निटिव मेंटल प्रोसेसेस एंड नॉन कॉग्निटिव। तो नॉन कॉग्निटिव को फीलिंग साइड भी कहते हैं। तो नॉन कॉग्निटिव, अब जैसे फीलिंग है, इमोशन, आई एम फीलिंग एंग्री, तो दिस एंगर इज व्हाट, इज नॉट ए कॉग्निटिव मॉडल। समझने और जानने में इन्वॉल्व नहीं होता। हमारे दिमाग में जो कुछ भी चलता है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम चीज़ों को समझने में इस्तेमाल करते हैं, जानने में इस्तेमाल करते हैं। नोइंग मतलब हुआ रिसीविंग इन्फॉर्मेशन, प्रोसेस ऑफ रिसीविंग एंड इंटरप्रेटिंग इज परसेप्शन, मतलब कोई चीज़ों को हम रिसीव करते हैं और उसको समझते भी हैं, तो ये कॉग्निटिव एस्पेक्ट। बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, परसेप्शन, अटेंशन, रिटेंशन, लर्निंग, बहुत सारे प्रोसेस हैं इसमें। और इधर इमोशन, मोटिवेशन, ये सब पोर्शन जो है वो नॉन कॉग्निटिव वाला है। तो बोथ काइंड ऑफ प्रोसेसेस आर पार्ट ऑफ मेंटल प्रोसेस। सो अंडरस्टूड। तो हम साइकोलॉजी में क्या स्टडी करते हैं? बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस, है ना। अब आपको ये क्लियर हुआ? थोड़ा एक चीज़ और समझते, कभी कभी ऐसा होगा कि इफ़ यू गो थ्रू एनसीईआरटी बुक, तो वहाँ पे एक वर्ड लिखा होगा एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस अलग से वर्ड है। एक्सपीरियंस मीन्स व्हाट, दैट एक्सपीरियंस जो है ना, वी जनरली टेक एक्सपीरियंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ लर्निंग। जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं उससे लर्न होता है कुछ, तो लर्निंग में इंक्लूडेड है एक्सपीरियंस। लेकिन अगर अलग से कहें कि वी स्टडी एक्सपीरियंस ऑफ इंडिविजुअल ऑल्सो, यस वी स्टडी, तो उसको आप एक्सप्लिसिटली बोले चाहे नहीं, इट इज़ इंक्लूडेड। ओके, जैसे आपने फ्रीडम स्ट्रगल किसी ने देखा है, बोला कि आपका कैसा एक्सपीरियंस था, तो सपोज यू आर स्टडिंग, बिकॉज हिज बिहेवियर विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट एक्सपीरियंस ऑल्सो। सो इन ऑर्डर टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, you will be interested in his personal experience also. Anyway, now when you, this is the domain कि हम क्या स्टडी करते हैं, बट कैसे करते हैं, what we study, एक होता है ना what, तो what का तो आंसर आपको मिल गया होगा ना, बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। लेकिन बिफोर आई मूव हाउ वी स्टडी, ये तो what का एस्पेक्ट है, तो हाउ अब करने का तो
तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन हम इस अगर हाउ पे आए इसके पहले मैं आपको एक और स्पेसिफाई कर देता हूँ कि कहते हैं ना गोल्स ऑफ साइकोलॉजी, 4 गोल्स ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के कितने गोल्स होते हैं? 4। तो गोल का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, देखो इसको लिखेंगे 4 गोल्स ऑफ साई फॉर साइकोलॉजी, शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, है ना। अब एक 4 गोल्स ये मतलब कि जो हम बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस की स्टडी करते हैं, देन व्हाट वी डू, तो द वन इज डिस्क्रिप्शन। बिट एक एग्जांपल से लेते हैं, हाइपर एक्टिव में क्या होता है, तो यू डिस्क्राइब द बिहेवियर दैट व्हाट द चाइल्ड डज, है ना, क्या करता है यूजुअली, तो डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट, ऑल सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन, मतलब क्या क्या करता है उसका डिस्क्रिप्शन करता है। एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन इज व्हाट, व्हाई, यू वांट टू अंडरस्टैंड द रीजन ऑल्सो। सो आवर फोकस इज नॉट जस्ट नोइंग कि क्या होता है, इंसान डिप्रेस क्यों होता है, आप जानना चाहते हैं क्यों होता है, ये भी क्या है डिप्रेशन ये समझते हैं, बट यू आर इंटरेस्टेड इन दैट व्हाट काउजेज दिस थिंग, व्हाट काउजेज हाइपर एक्टिविटी, वी आर गेटिंग। एक्सट्रोवर्ट है तो व्हाट काउजेज एक्सट्रोवर्जन, व्हाट काउजेज इंट्रोवर्जन, आप समझना भी चाहते हैं, तो दैट इज एक्सप्लेनेशन। एंड देन यू आर एबल टू प्रिडिक्ट ऑल्सो। प्रिडिक्शन करने का मतलब कि जैसे किसी की IQ कम है, आप उसकी बिहेवियर की स्टडी कर लिया, तो आपको लगता है क्या हो सकता है फ्यूचर में इसके, तो क्लासरूम में उसको बिहेवियरल प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि स्टडीज़ बताती है जब आप बहुत सारे लोगों को कि ऐसे लोगों को बिहेवियरल प्रॉब्लम होती है, क्योंकि शुरुआत में तो कोशिश करते हैं, बट बिकॉज ऑफ सपोज लोअर IQ, इफ चाइल्ड इज नॉट कैपेबल टू परफॉर्म, तो बिकॉज ऑफ दैट इन्फीरियरिटी एंड ऑल मेनी बिहेवियरल प्रॉब्लम माइट अराइज, यू कैन से, है ना, हो सकता है। एंड तो ये प्रिडिक्शन आप कर सकते हैं कि इनको बिहेवियरल प्रॉब्लम हो सकता है, ध्यान रखना, लड़ाई कर लेगा, किसी का कुछ तोड़ दिया, किसी का कुछ शुरू, मतलब वो स्टार्ट हो रहा है एक्चुअली उसका रूट कॉज उधर है। एंड देन कंट्रोल, कंट्रोल का मतलब होता है कि सपोज पर्सन इज हाइपर एक्टिव, देन बाय यूजिंग योर साइकोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक, जो भी आपने नॉलेज गेन किया उसको अप्लाई करके क्या हम उसके बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। कंट्रोल इज ऑल अबाउट चेंजिंग द अनडिजायरेबल थिंग, है ना। तो कैन बी अप्लाई दोज प्रिंसिपल्स टू चेंज द बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। जैसे किसी को बहुत ही निगेटिविटी होती है, तो क्या हम उसको किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं कि आप थोड़े पॉजिटिव हो जाओ। जैसे हम अपने काउंसलिंग सेशन में करते हैं कि अच्छा ठीक है, फोकस करते हैं, आप अपने पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करते हैं पहले, मतलब निगेटिव को काउंट करने से पहले पॉजिटिव को भी काउंट कर लेना, करना जितना मन आए करना, लेकिन आप निगेटिव को काउंट करने के पहले पॉजिटिव। और अगर नहीं याद आता है क्योंकि आपको बायस होगा, जो कहते हैं ना स्टेट डिपेंडेंट मेमोरी, अगर आप निगेटिव मूड में हो तो निगेटिव चीज़ें ज़्यादा याद आएंगी, तो ये ऐसा होता है। तो आप उसके लिए कुछ मैकेनिज्म होता है एंड दैट हेल्प्स अ लॉट। एनीवे, तो 4 गोल्स ऑफ साइकोलॉजी, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। सो फार वी हैव डिस्कस what we study in psychology, behavior and mental process. What do you mean by behavior, what do you mean by mental processes, clear? And then what are the 4 goals of psychology? And now come forward, then how we study, the term is here scientific, देखो यहाँ पे लिखा है scientific, what does it mean? Scientific का word का मतलब क्या है, and why scientific, question is this. सो वाई साइंटिफिक को अगर आप समझना चाहते हो, देन आप ऐसे समझो दैट इन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 21 देयर वाज ए क्वेश्चन दैट व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ इंट्यूशन, है ना, एंड कॉमन सेंस। अगर हम चीज़ों को इंट्यूशन से भी तो समझ सकते हैं। इंट्यूशन क्या होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं सहज बोध, मतलब अंदर से लगा मुझे ऐसा। तो इंट्यूशन से भी तो चीज़ों को समझ सकते हैं कि क्यों ये हाइपर एक्टिव हो रहा है, ये क्या है, ये कैन यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। इंट्यूशन में क्या स्थिति है, इंट्यूशन ठीक है कई बार सही भी हो सकता है आपका, बट इंट्यूशन पर्सन बेस्ड है, हर कोई इंट्यूशन नहीं होता, तो एक सिस्टमेटिक स्टडी नहीं कर सकते इस मेथड से। हमें इंट्यूशन हो रहा है कि आज ट्रेन लेट हो जाएगी, मतलब क्यों इंट्यूशन हो रहा है, लग रहा है ऐसा, और ट्रेन लेट हो जाती है। इफ़ यू आस्क द पर्सन व्हाट वाज द बेसिस ऑफ दैट, ही विल नॉट एक्सप्लेन, सी दिस।
तो इंट्यूशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पर्सन सेंट्रिक है ना, एंड इट इज प्रोसेस इज नॉट क्लियर हाउ यू वुड अप्लाई टू स्टडी समथिंग। तो किसी को इंट्यूशन हो भी सकता है, किसी को इंट्यूशन नहीं भी हो सकता। तो इसको आप ये स्टडी क्वेश्चन आया है जिसको हमने सेपरेटली डिस्कस किया है कि इंट्यूशन का एक पर्सन सेंट्रिक होता है, उसमें ये प्रोसेस क्लियर नहीं है, तो दैट इज यू कैन नॉट अप्लाई हियर। लाइकवाइज इन कॉमन सेंस, व्हाट इज दैट? कॉमन सेंस इज व्हाट जिसको कहते हैं ना कि प्रैक्टिकल नॉलेज एंड ऑल। सो कॉमन सेंस इज अबाउट कॉमन बिहेवियर, है ना, कि जैसे पैसे कम हो तो खर्च नहीं करना चाहिए ज़्यादा, ऐसे सिंपल कॉमन सेंस है कि भाई पैसे कम थे तो तुमने खर्च क्यों ज़्यादा किया, कॉमन सेंस है। लेकिन जरूरी नहीं कि कॉमन सेंस से सभी चीज़ को आप एक्सप्लेन कर पाए, है ना। कुछ लोग पैसे नहीं होते तो चुपचाप बैठ जाते, कुछ लोग लोन लेते हैं और बिजनेस करते हैं, लोन लेते हैं एजुकेशन को परस्यू करते हैं। तो कॉमन सेंस हर जगह नहीं वर्क करेगा, कॉमन सेंस है कॉमन चीज़ों के लिए, बट इफ़ यू गो इन एक्सट्रीम आइदर टू लो और टू हाई तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा कॉमन सेंस। द बिहेवियर जो है हमारा वो काफ़ी ब्रॉड है, देखिए आप हर तरह के बिहेवियर की बात है। तो कॉमन सेंस किस लिए है कि जैसे कि भाई आप स्टूडेंट हो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ज़्यादा रिवीजन करो याद रहेगी चीज़ें, ये कॉमन सेंस है। लेकिन साइंटिफिक रिसर्च क्या कहता है कि रिवीजन करने से केवल नहीं हो सकता, मल्टीपल रिवीजन करते रहो अनटिल अनलेस यू हैव इंटरेस्ट का बहुत रिलेशन है मेमोरी से, सीधा सीधा जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसमें। सेकेंड थिंग, वो रिवीजन करते कैसे है, एक तो होता है केवल देखते हैं और दूसरा है कि नहीं उसके मीनिंग को समझते हैं। मीनिंग का मतलब कि मतलब यो आप कैसा दिख रहा है वो समझते हैं, उसको दिखता कैसा है, व्हाट इज हाउ इट लुक्स, वो भी सही है। जैसे कि मैंने ये ऐसे लिख दिया ब्लैक और आप ऐसे समझो हमने इसको लिखा रेड, तो मैंने रेड लिखा हुआ लेकिन ब्लैक इंक से लिखा हुआ था, ये फिजिकल एस्पेक्ट, इसका मीनिंग समझते हैं वो एक अलग एस्पेक्ट। अगर आपको आई लाइक रेड कलर वो अलग एस्पेक्ट है। देन एलोबोरेशन इज एट डिफरेंट लेवल, है ना, आप समझ रहे हो लेकिन उसका लेवल अलग अलग है। देन मेमोरी विल बी डीपर। तो किसी चीज़ रिसर्च बताती है साइंटिफिक से कि दैट किसी चीज़ को अगर आप पसंद करते हैं, खुद से उससे आपसे कनेक्शन है, उसका इंटरेस्ट है, देन मेमोरी विल बी डीपर, वो रहेगा, परमानेंट ज़्यादा होगा। तो सीधे से कॉमन सेंस तो इक्वल रिवीजन कर लो हो जाएगा। तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो इट इज़ नॉट, इट इज़ जस्ट फॉर कॉमन पर्पस एंड सम टाइम इट मे वर्क एंड इट मे नॉट वर्क। तो कॉमन सेंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो कॉमन चीज़ों पे वर्क कर लेता है और उतना भी कॉमन नहीं है। सेकेंड, एक्सट्रीम चीज़ों पे ये सेंस काम नहीं करता, है ना, ये जरूरी नहीं है कि कॉमन भी विजडम कहते हैं इसे। जैसे आप किसी से दूर चले जाओ तो क्या वो चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, दोस्ती की रहेगी, वो डिपेंड करता है ना, दूर होने पे भी हो सकता है लोग में बॉन्डिंग बना रहे। तो कॉमन सेंस यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो कॉमन सेंस कॉमन बिहेवियर के लिए कि जैसे आपको पैसे कम हो तो क्या, जैसे एग्जांपल दिया, टाइम को कैसे मैनेज करना चाहिए, है ना, और डेली लाइफ, डे टू डे लाइफ में सोशल बिहेवियर कैसे करना, ये सब कॉमन सेंस के लिए। लेकिन एक्सट्रीम कोई ऐसी चीज़ें हैं देन इट विल नॉट बी दिस विल नॉट बी प्रैक्टिकल नॉलेज विल नॉट बी वेरी हेल्पफुल। जैसे आप एग्ज़ाम में फेल हो जाओ और जैसा फील हो रहा है, नेगेटिव फील हो रहा है, अब उसमें आप कॉमन सेंस लगा के आप ओवरकम नहीं कर सकते, तो वहाँ पे आपको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत होती है। तो एक ख़ास तरह के रिसर्च बेस्ड, मतलब जो चीज़ें डिपेंडेबल हो, ऐसा नहीं कि तुक्का लगा के कर दिया है, अंडरस्टूड। तो आप किसी के तुक्का लगा के डिप्रेशन का इलाज तो नहीं करेंगे ना, ठीक है। तो अब चलते हैं कि साइंटिफिक वर्ड का मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइंटिफिक, वाई साइंटिफिक। तो ये दोनों देखो कि व्हाट वाई आई नो पीपल एम्फेसाइज साइंटिफिक मेथड, कि ये क्वेश्चन आया भी है कि दैट कॉमन सेंस और इंट्यूशन का क्या लिमिटेशन है। और साइंटिफिक, साइंस रन्स ऑन टू थिंग्स। साइंटिफिक वर्ड का मतलब ये है कि एक लॉजिकल होगा और एविडेंशियल होगा। लॉजिकल और एविडेंस, जो साइंटिफिक है ना, साइंस राउंड ऑन एविडेंस, दो चीज़ें, साइंस राउंड ऑन एविडेंस। जैसे कहते कि ये अभी क्या है, दिन है या रात है, तो आप कहते हो दिन है, तो कहते हो क्या क्या कैसे कर सकते हो दिन है, व्हाट इज दिस, तो आप देते ना एविडेंस देते हो। उसी तरीके से आप कहते हो कि दैट
ये एसिड है या बेस है, टेस्ट कर लेते हैं, एविडेंस होता है। सो साइंस रन ऑन एविडेंस, मतलब किसी चीज़ का अगर प्रमाण दे सकते हैं, उसका एविडेंस दे सकते हैं, तो वो साइंटिफिक हो सकता है ना। लेकिन कभी कभी एविडेंसेस क्या होते हैं, मिसगाइडिंग होते हैं। मतलब जैसे कि आप एक पानी के अंदर इफ़ यू इंसर्ट दिस इट्स विल अपीयर स्लाइटली बेंड, तो आपको भी मालूम है कि ये ऑप्टिकल फिनोमेना के कारण हो रहा है, वो बेंट नहीं है। तो कैसे आपने समझा? क्योंकि इसको बाहर निकाल के देखेंगे तो लगे अरे सीधा है, फिर डालो तो बेंट है। तो जो हम लोग उसको फिजिक्स में पढ़ देते हैं ना, मिराज और इल्यूजन्स, तो वो लॉजिकल चीज़ों से हो कि अगर सेम चीज़ है तो अभी तुरंत मैंने इसको देखा है, तो अलग कंटेक्स्ट में देखा तो ये उल्टा कैसे हो गया? यानी कहीं ना कहीं हमारी आंखों में दिक्कत नहीं, वो कुछ मीडियम का इशू हो रहा है मे बी। तो लॉजिकल स्क्रूटनी से एविडेंसेस को हम ज़्यादा पकड़ते हैं। जैसे कि एक कोर्ट में एक व्यक्ति ने कहा कि मैं गलती से मैं अपने जिसको भी चाकू मारा था, स्टैबिंग गलती से हो गया। तो ठीक है भाई, एक एविडेंस था कि चाकू मारा है, उसने कहा गलती से हो गया। तो अब एविडेंस पे क्या करेंगे? लॉजिक ये कहा कि भाई जज ने पूछा कि अच्छा गलती से हो गया, हाँ हाँ, तो गलती से हुआ, तो आप ये बताओ कि 10 बार कैसे हुआ गलती से? गलती से तो एक बार होगा, 2 बार हो गया होगा। तो इसी दिस इन द लॉजिक विल रिफाइन योर एविडेंस। मतलब जो एविडेंस है उसको स्क्रूटनी कर सकता है इसको, है ना। कुल मिलाकर मैं क्या बता रहा हूँ कि साइंस रन्स ऑन एविडेंस। तो एविडेंस के आधार पर जो चीज़ें होती हैं उसको, जैसे आप क्या मेडिकल साइंस में कहते हैं कि दैट फ्रैक्चर्ड है, तो देख लो, एक्सरे करके देख लो, एविडेंस है। 1971 में BF स्किनर नाम का एक रिसर्चर था, उसने एक रिसर्च करके दिखाया कि भाई देखिए, अगर किसी बिहेवियर को रीइंफोर्स करेंगे, ही रीइंफोर्स रैट बाय गिविंग फूड पिलेट। रैट जब किसी खास बिहेवियर को करता था, यानी कि व्हेन रैट वुड प्रेस द लीवर, then rat would be given food pellets to it, है ना, and that was reinforcing. So what he found that would be repeated, that behavior will be more frequent in future, and he demonstrated this. तो क्या हुआ? एविडेंस हुआ। अगर आप कह सकते कि अच्छा एक प्रिंसिपल हुआ कि रीइंफोर्स रिस्पॉन्स इज रिपीटेड, यानी कि बिहेवियर जो हम रीइंफोर्स करते हैं वो रिपीट होगा। यू आर गेटिंग? बोला इसको तो आप दिखा सकते हैं। जो चीज़ आप दिखा सकते हैं ना वो साइंटिफिक है, लेकिन दिखा देने से नहीं होगा, उसका स्क्रूटनी भी हो सकता है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट दैट स्क्रूटनी मैं यहाँ पे क्यों कर। सो अभी AC स्टार्ट नहीं हुआ यहाँ पे, उसमें सर्विसिंग बाकी है, इसलिए मैं आपको शुरुआत के क्लास में इस तरह से बना के दे रहा हूँ आपको। बड़ा ट्रेडिशनल मेथड्स में पढ़ा रहा हूँ। देखो नॉर्मल बोर्ड है ये एंड नॉर्मल क्लासरूम है, तो AC वगैरह लगा हुआ है, लेकिन वो सर्विसिंग के बाद होगा। लेकिन वापस आते हैं यहाँ पे, तो कहने का ये है कि दैट साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। इसको आप थोड़ा समझ लीजिए। तो साइंटिफिक बोलने का मतलब क्या है? साइंस रन्स ऑन एविडेंसेस। तो 2 विंग्स होते हैं साइंस के, एक एविडेंस और एक लॉजिक। अब इसके साइंस के रूट्स क्या हैं वो हमने बहुत सारे वीडियोज़ में मैं आपको दूंगा लेसन्स में, जो आप समझेंगे कि साइंस कैसे इवॉल्व हुआ। लेकिन उसमें अभी जाने की ज़रूरत नहीं। अभी आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप उसको केवल समझो। दैट टाइम व्हेन आई विल डिस्कस समथिंग देन आई विल एक्सप्लेन। तो अभी आई होप कि आप ये देखो कि आप मैंने जो कुछ भी पढ़ाया है, हैव यू अंडरस्टूड दैट थिंग क्लियरली? ये देख, तो साइकोलॉजी का मतलब क्या है? व्हाट इज साइकोलॉजी? तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस, यही ना? हाँ, ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल। एक क्वेश्चन लास्ट में डिस्कस करते हैं कि व्हाई एनिमल? एनिमल को क्यों ह्यूमन को करते हैं? यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि दैट फॉर सेवरल प्रैक्टिकल एंड एथिकल रीजन यू कैन नॉट कंडक्ट एक्सपेरिमेंट ऑन ह्यूमन बीइंग, है ना। आप तो कर सकते हो, कई लोग कहते हैं कि नहीं एनिमल में भी नहीं करना चाहिए, वो तो अपने जगह पर डिबेट कर सकते हैं। बट एनिमल इसलिए कि मेनी ऑफ द principles of behavior have been developed out of the experiment that have been conducted on animals. एनिमल पे किया हुआ रिसर्च से, एक्सपेरिमेंट से कई एक्सपेरिमेंट के बिहेवियर निकले, प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर दैट वी यूज टू एक्सप्लेन ह्यूमन बिहेवियर ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल स्किनर, BF स्किनर, ही इज अ बिहेवियरिस्ट। In 1971 I told you
that he conducted experiment on rat. E.L. Thorndike, he conducted experiment on cat, and he developed a principle that is called law of effect. And now those things, these principles are very well applicable on human behavior. जैसे उसी प्रिंसिपल पे ह्यूमन बिहेवियर वर्क करते हैं. तो सी दिस थिंग, एनिमल का जो बिहेवियर है, यानी एनिमल जो है उसकी स्टडी करके हम ह्यूमन के बिहेवियर को भी स्टडी कर ले, समझ लेते हैं. जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि देयर इज अ एरिया इन द ब्रेन का 3 लेयर होता है, जिसको कहते हैं रेप्टाइलियन ब्रेन, मैमेलियन ब्रेन और न्यू मैमेलियन ब्रेन. तो सबसे नीचे वाले भाग में एक एरिया होता है जिसको कहते हैं हाइपोथैलेमस. एवरीबडी नोज दैट इज ए रेगुलेटर ऑफ आवर मेनी थिंग्स. इंडोक्राइन को भी रेगुलेट करता है हाइपोथैलेमस. देयर इज अ पी लाइक स्ट्रक्चर दैट इज हाइपोथैलेमस. In a hypothalamus, there is an area that is called lateral hypothalamus, side wall. If that is damaged, then you would not feel hungry. खाना रखा रहेगा but भूखे मर जाओगे आप. You are getting? This is the thing. You would not feel hungry. So, in order to test this thing whether hypothalamus controls feeding behavior, this experiment has been conducted on rat and cat and lower order animals. एंड दैट वाज कंफर्म कि हाँ हाइपोथैलेमस में ये होता है. सो नाउ हु कुड यू डू दिस थिंग ऑन ह्यूमन सब्जेक्ट? नहीं कर सकते ना. दिस इज द रीजन दैट वी इंक्लूड एनिमल बिहेवियर ऑल्सो, सो दैट वी कुड डेवलप सम प्रिंसिपल एंड वी वुड सी दैट वेदर दैट दीज प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल फॉर ह्यूमन बींग्स और नॉट. गेटिंग? तो फॉर प्रैक्टिकल एंड एथिकल रीजन भी. और एक और रीज़न बता देता हूँ कि जैसे एनिमल के बहुत सारे सिस्टम जो हैं वो हमारे से है, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, जैसा उसका वो नर्वस सिस्टम, डिग्री अलग हो सकता है, एवोल्यूशन का लेवल अलग हो सकता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें कॉमन है. तो दैट देयर इज सिमिलरिटी एंड दैट इज़ वाई एनिमल बिकम गुड सब्जेक्ट्स फॉर स्टडी. तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट देखेंगे दैट इज कंडक्टेड ऑन एनिमल्स. तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि एनिमल की स्टडी क्यों करते हैं और ये डेफिनेशन क्या है. छोटा रखते हैं अभी क्लासेस को, अभी 2 घंटे की क्लास नहीं रखते, हाफ एन आवर का रखते हैं. एंड यू कैन सी दिस सेम लेक्चर अगेन एंड अगेन एंड यू विल फाइंड दैट व्हाट इज साइकोलॉजी ऑल अबाउट. मिलेंगे अगले क्लास में और बात करेंगे इसके अगले भाग में कि जो सिलेबस दिया है उसको डिस्कस करेंगे. प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी बीच बीच में लेते रहेंगे. थैंक यू वेरी मच.